ओके जी। सो आज हमने जो करना है, नहीं ये वाली नहीं है, अच्छा ये आपको प्रैक्टिकल की शो हो रही है ना। ओके, आज जो हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे दैट इज द डिटरमिन द काइनेटिक ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द शुगर। ठीक है, hydrolysis of the sugar. What is sugar? That is the common sugar that we say that it is the table sugar that we use at our home. And the scientific name of the sugar, what is the scientific name of sugar? Its name is sucrose. So आज हम लोगों ने डिस्कस करना है किसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अच्छा जी, हमारा जो एम है आज के प्रैक्टिकल, वी हैव टू डिटरमिन द रेट कांस्टेंट ऑफ द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाइड्रोलिसिस शुगर। यहाँ पे इस जो हमारे पास प्रैक्टिकल है इसके अंदर दो टर्म्स है, एक टर्म है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर और हमारे पास यहाँ पे जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास क्या है, दैट इज द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। What is the meaning of hydrolysis? What is the meaning of hydrolysis? Basically, it is the breakdown of some substance in the presence of water. In the presence of water, hydro mean water and lysis mean breakdown. So it doesn't mean that it is the breakdown of water. Hydrolysis reaction are those reaction in which a substance is break down in the presence of water. So where we done the hydrolysis of sugar. क्या होता है, शुगर हमारे पास सुक्रोज है, that is the table sugar that we used in our food. And how it is made up of? It is made up of two things. One is the glucose and other is the sucrose. Sucrose and glucose, there are two carbohydrates. When they combine together, they will form the sucrose molecule. And during hydrolysis, when we done the hydrolysis, what we done, we just add the water, and after adding the water in the sugar, there is the breakdown of the sugar into the glucose and fructose. ठीक है, एक बात तो यहाँ पे ये क्लियर होगी। सेकंड थिंग इज द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीडो? सीडो मीन फॉल्स and first order reaction, the order of reaction in which only concentration of a single molecule is used for the rate determining step, we called it the first order reaction. अब यहाँ पे सीडो फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा जो हमारे पास सीडो है यानी कि फॉल्स है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे है। First thing is that sugar is hydrolyzed in the presence of an acid and give rise to the glucose and fructose. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल है that rotate the plane polarized light. ठीक है, पोलराइजेशन क्या होती है, if we are passing the light from a solution and the light is rotate either in the left or the right direction, you can say it is the light plane of polarization or the light is polarized. If it is rotate in the left side, you called it the levorotatory, and if the light will rotate at the right side, you called it is the dextrorotatory. अब हमारे पास जो सुक्रोज है, व्हाट इज सुक्रोज? इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द शुगर। ठीक है, सुक्रोज इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी that when the light is fall on the sucrose solution, so all the light will related to the right side, बट द रिजल्टिंग मिक्सचर, लेकिन उसका जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो हियर वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, अगर जो हमारे पास फ्रुक्टोज का सोल्यूशन हो ना सिंपल, दैट इज द लीवोरोटेटरी, और अगर हमारे पास ग्लूकोज का हो तो क्या वो होता है, वो भी हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। Levorotatory, clear in your mind, that can rotate the light plane, light को अगर वो left side rotate करता है it is the levorotatory, and if rotate the light at the right side it is the dextrorotatory. सुक्रोज हमारे पास dextrorotatory है अगर उसका सिंपल सोल्यूशन है, फ्रुक्टोज का भी अगर आप लोग अलग से सोल्यूशन लें वो levorotatory है, और जो ग्लूकोज है वो क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। नाउ वी आर डूइंग द हाइड्रोलिसिस। अगर हमने हाइड्रोलिसिस की है शुगर की तो उस सॉल्यूशन के अंदर ही ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज प्रेजेंट है,
आपको पता है फ्रुक्टोज हमारे पास लीवो रोटेटरी है, ठीक है, और जो ग्लूकोज है वो डेक्सो रोटेटरी है। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर हमारे पास स्लाइटली लीवो रोटेटरी भी होगा और डेक्सो रोटेटरी भी होगा। अब द मिक्सचर इज सेड टू बी द लीवो रोटेटरी आर कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ शुगर आल्सो। लेकिन हम अपना जो सोल्यूशन है उसको लीवो रोटेटरी ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रोटेशन, मोलर रोटेशन है फ्रुक्टोज की, वो -92 का एंगल है, लेकिन डेक्सो रोटेटरी का जो एंगल है ना वो +52.5 है। तो यहाँ पे लीवो रोटेशन हमारे पास ज्यादा हुई, वहां का जो एंगल है वो हमारे -92 डिग्री है, जबकि जो डेक्सो रोटेटरी है ये जो एक एवरेज मोलर रोटेशन यहाँ पे हम लोगों ने लिखी हुई है। इसको अब हम इन्वर्जन ऑफ शुगर भी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं कि इन्वर्ट हुआ है। पहले हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी लाइट होती है शुगर सोल्यूशन की, आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो लीवो रोटेटरी लाइट जो है अगर उसके ऊपर आप पास करते हैं तो सोल्यूशन क्या करेगा, लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा, इसलिए इसको इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? एकदम से बदल जाना। So the sucrose is used up and fructose glucose mixture is formed and the angle of rotation to the right look observed into the polarimeter become less and finally the light is rotated to the left side. Okay. इस प्रैक्टिकल के अंदर जो हम apparatus यूज करेंगे ना, that is the polarimeter. polarimeter आप लोगों ने अगर देखा हो, नहीं तो एंड पे हम एक छोटा सा क्लिप है उसको देखेंगे जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। पोलैरीमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग लाइट अपना सोल्यूशन रख देते हैं एक सैंपल ट्यूब के अंदर डाल के, और एक साइड से लाइट को पास करवाते हैं, लाइट उस सैंपल के अंदर से पास करती है, और उसकी अपोजिट साइड पे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है जस्ट लाइक द माइक्रोस्कोप। थोड़ा सा माइक्रोस्कोप को अगर ज़हन में ले आए, जैसे उसके नीचे स्टेज होता है वहां पे हम सैंपल रखते हैं और लाइट पास करते हैं, सिमिलरली कुछ इस तरह का ही हमारे पास सेटअप है, सोल्यूशन होते हैं, हम उसके अंदर से लाइट पास करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, वहां से हम देखते हैं और हमारे पास 4 तरह के व्यू आते हैं। एक तो हमारे पास फुल ब्राइट सर्कल आ जाता है, एक हमारे पास फुल डार्क सर्कल आ जाता है, एक व्यू हमारे पास होता है कि जो सेंटर पोर्शन है सिर्फ वो हमारे पास डार्क हो, और एक हमारे पास होता है कि जो हमारे पास सेंटर पोर्शन है वो हमारे पास क्या हो, वो डार्क हो। तो 4 तरह के व्यूज आते हैं। अगर आप लोग सिर्फ सुक्रोज शुगर को बिफोर हाइड्रोलिसिस अगर आप उसकी मेजरमेंट करते हो तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन अगर उसका जो मिक्सचर बना लेते हो आफ्टर हाइड्रोलिसिस तो वो हमारे पास लीवो रोटेटरी आता है। और आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि जो उसका पता कैसे चलता है, लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या एंगल से। आप यहाँ पे देखो कि ये -92, तो ये जो एंगल है ये बहुत ज्यादा कम है, और जो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एंगल है वो क्या है, वो हमारे पास ज्यादा है। तो जैसे जैसे आपका सोल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी की तरफ मूव करता है, हम देखते हैं कि जो हमारा एंगल है वो क्या है, वो हमारा कम कम होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोगों ने डिटरमिन क्या करना है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, किस चीज की फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने, शुगर की हाइड्रोलिसिस की। चलेगा, देखें हाइड्रोलिसिस नहीं हुई तब हमने सुक्रोज का सोल्यूशन डाला, और एट द बिगनिंग हम लोगों ने क्या किया, उसको व्यू किया, हमें एक एंगल मिल गया डेट वी सेट द ए नॉट। ठीक है, ए नॉट। अब ए नॉट कौन सा एंगल है, वो इनिशियल एंगल है जब अभी सुक्रोज की जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस है वो नहीं हुई। वाटर डाला, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस हुई, जब हाइड्रोलिसिस हो रही थी, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम हाइड्रोलिसिस हुई और एक इन्फिनिट टाइम आ गया। ए नॉट एल जो हमारे पास यहाँ पे ए नॉट है, इसका मतलब है आफ्टर अ इन्फिनिट व्हाट हैपन, all the hydrolysis is done, all the sugar is converted into the glucose and sucrose. So as a result क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि हमारे पास क्या वो उस वक्त जब इन्फिनिट टाइम के बाद जब हमने एंगल नोट किया लाइट की पोलराइजेशन का, तो वो मेरे पास आ गया ए इन्फिनिट। ए नॉट क्या है, इनिशियल एंगल बिफोर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, and A infinity is the angle of rotation
that after complete hydrolysis. ठीक है, अब अगर मैं a इंफिनिटी माइनस a नॉट यानी कि अलजेब्रिक डिफरेंस अगर हम ले लें इनिशियल कंसंट्रेशन का और फाइनल कंसंट्रेशन, तो वो हमें क्या बताती है, वो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन सुक्रोज की बता देगा। a नॉट माइनस a इंफिनिटी की जो आपकी एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यूज आएंगी, इनका जो डिफरेंस है दीज रीडिंग का, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मेजरमेंट है ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज। ठीक है, उस हमें डिफरेंस से पता चल जाएगा कि जो बिफोर हाइड्रोलिसिस ये एंगल था और आफ्टर हाइड्रोलिसिस एंगल आपका डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। दोनों एंगल्स का डिफरेंस लेके जब हम एक प्लॉट ड्रा करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलती है, इनिशियल कंसंट्रेशन किस चीज की, आपके रिएक्टेंट की, दैट इज द सुक्रोज। सो ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड करता है बहुत स्लोली एंड यू हैव टू मेजर इन द प्योर वाटर। और ये जो रिएक्शन है ये हम वैसे भी यूज करते हैं किस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट यूजली हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास यूजली एसिड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनके पास प्रोटॉन हो या हमारे पास हाइड्रोजन आयंस वगैरह हो। अच्छा, तो यहाँ पे ये बात होगी। अच्छा जी, अब अगर आपको यहाँ पे एक रिएक्शन नजर आ रहा है, हमारे पास C12H22O11 which is the formula of the sucrose plus water in the presence of an acid, it will give us the glucose and sucrose, both are having the same molecular formula but having the different structural formula। ठीक है, C6H12O6 दोनों का जो फार्मूला है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाता है, इनके स्ट्रक्चर्स में। अच्छा जी, अब इस फार्मूले में अगर आप देखें, अगर मैं आपको ये एक जनरल रिएक्शन कहूँ कि देखें और मुझे बताएं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। बज़ाहिर देखने में आप कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर है, क्यों? क्योंकि आप रिएक्टेंट में देख सकते हैं कि एक हमारे पास रिएक्टेंट है सुक्रोज और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, वाटर। तो दो रिएक्टेंट है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं? Second order reaction is a reaction when the rate of the reaction is proportional to the concentration of the product of two species of the reactant. इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करना है, that it is the first order reaction in which rates depend upon only single कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज। अगर एक स्पीशीज, एक रिएक्टेंट की एक स्पीशीज की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड करता है, इट विल बी द फर्स्ट ऑर्डर। और अगर दो पे करता है देन इट विल बी द सेकंड ऑर्डर। अच्छा, अब जाहिर इस इक्वेशन को देख के हमें यहाँ पे ये लगता है कि देयर इज द सुक्रोज एंड देयर इज द वाटर, सो देयर विल बी द टू स्पीशीज इन द रिएक्टेंट। तो होना क्या चाहिए, अगर मैं इसका रेट कांस्टेंट लिखूं तो इट विल डिपेंड अपॉन द शुगर एज वेल एज इट डिपेंड अपॉन द वाटर। लेकिन ऐसा होता ओरिजिनली नहीं है। अगर आप हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर की इक्वेशन लिखते हो और इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो वाटर है, जो हमारे पास दूसरी स्पीशीज है रिएक्टेंट की, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। जबकि तमाम का तमाम जो रेट ऑर्डर रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज और द कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस इज वी नो वी कॉल्ड इट द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेसिकली देखने में हमारे पास रिएक्टेंट दो तरह की हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, एक सुक्रोज है और एक वाटर है। ठीक है, लेकिन और होना क्या चाहिए कि यहाँ पे बज़ाहिर वाटर और सुक्रोज दोनों को ही पार्ट लेना चाहिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप में या जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। लेकिन होता क्या है, वाटर यहाँ पे अपने आप को जो सा है वो यूटिलाइज नहीं करता, सिर्फ जो कंसंट्रेशन जो रेट जो हमारे पास जो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज पे कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज की कंसंट्रेशन पे कर रहा है। दैट्स वाई हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज नोन एज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो का क्या मतलब है, फॉल्स, और फर्स्ट ऑर्डर द कंसंट्रेशन इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली सिंगल concentration of the reactant, you said it is the first order।
Although this reaction consumes two species of the reactant, but water is in large in excess, so its concentration does not change. ठीक है, that's why concentration is only dependent upon the sucrose, and that's why we called it the pseudo first order reaction. मैम अब हम मैम जी जहाँ पे भी वाटर पार्टिसिपेट करेगा वहाँ पे हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे या ये जस्ट इसी के लिए स्पेसिफाई है? ये ना डिफरेंट रिएक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ रिएक्शन होते हैं जो जिनके ऊपर वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है ना वो अफेक्ट करती है, लेकिन यूजली अगर वाटर असेस में यूज हो रहा है, असेस में मतलब कि अगर आप कोई डल्यूट रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहां पे इसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि वो इतनी ऑलरेडी असेस में है कि उसकी कंसंट्रेशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई चेंज ही नहीं आता। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जैसे एक रिएक्शन कंटिन्यू होता है, वक्त गुजरता है तो क्या होता है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना उसके ऊपर अफेक्ट होता है। उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। इस चीज को फाइंड आउट करने का नाम ही रेट ऑफ रिएक्शन है। अब एक चीज है जो ऑलरेडी असेस में प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसलिए। लेकिन कुछ रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन वैसे जनरली यूजली जो वाटर है ना वो हमेशा असेस में यूज होता है, और अगर वो असेस में यूज हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे हम उसको ज्यादा यूज नहीं करते। जैसे अगर आप ये देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है। आप ये देखें जब हम लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब हम पीएच करते हैं और हम कहते हैं कि हम लोगों ने एक एसिड की हाइड्रोलिसिस कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और उसकी करें, हम क्या करते हैं जब हम लोगों ने मोलर निकालना होती है उसकी कंसंट्रेशन, तो हम वाटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी एक मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वाटर लार्ज इन एक्सेस है। तो डेफिनेटली जहाँ पे भी आप वाटर यूज करेंगे वहां पे उसकी अगर उसकी एक्सेस लार्ज है, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वाटर के, वो हमें पता होता है कि इतने कंज्यूम होने हैं, फिर वहां पे उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। कुछ होते हैं हम बकायदा हम इक्वेशन के अंदर लिखते हैं कि भाई ये इतने मॉलिक्यूल हैं जो वाटर के इसके अंदर कंज्यूम हो रहे हैं और उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल का पता हो फिर डेफिनेटली वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये जो सीडो ऑर्डर रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ये तो इन्वर्जन ऑफ शुगर के अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक में लाइक जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होते हैं, जो टेट्रा अल्काइल टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अगर आप उनकी भी ब्रेक डाउन करते हो वाटर में तो वो अल्कोहल्स बनाती हैं, वो भी हमारे पास सीडो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होती हैं। तो इस तरह डिफरेंट है। बट एनी हाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की इंफॉर्मेशन मिलती है कि इतने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो इन्वॉल्व होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने में। अगर वाटर असेस में प्रेजेंट है, इतना ज्यादा उसके पास वाटर की कंसंट्रेशन है कि कुछ चेंज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, देन वी जस्ट इग्नोर इट एंड वी कॉल इट द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास जो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर है वो हमारे पास क्या है, इट इज द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा जी, अब जो रेट एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, के हमारे पास रेट कांस्टेंट है, इट विल इक्वल टू 2.303 इंटू टी लॉग ए इंटू ए माइनस एक्स। ये जो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है ये हमारे पास कहाँ से आया है? ये बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, ये इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल किया था, दैट इज द अमाइल एसीटेट, सोडियम एसीटेट का जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, वो भी बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही था। और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और वो जो रिएक्टेंट है फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो उसकी बिफोर जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, एक्स होती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम या उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन
हमारे पास ए होती है और आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम लाइक दिस वन फॉर एग्जांपल आप इस ए को कंसीडर कर लें, ये हमारे पास ए रिएक्टेंट है और इसने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। जब मेरे पास अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, उस वक्त मेरे पास ए की कंसेंट्रेशन क्या होती है, सपोज कर लें कि मेरे पास ये स्मॉल ए है और उस वक्त प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास 0 होता है। लेकिन और ये किस टाइम पे होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, इनके टाइम हमारे पास 0 है। कंसिडरेशन हम लिख सकते हैं ए माइनस एक्स। ए हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन है और एक्स हमारे पास फाइनल कंसेंट्रेशन है प्रोडक्ट की, और ए हमारे पास जब ए है और प्रोडक्ट हमारे पास 0 है, लेकिन जब कुछ टाइम गुजरने के बाद आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो वो एक्स होता है, और उस वक्त जो रिएक्टेंट है उसकी क्या कंसेंट्रेशन होगी, उसको कहते हैं ए माइनस एक्स। इसको हम काइनेटिकली जो है ये सारा कुछ सॉल्व करते हैं और अल्टरनेटिवली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया है। एनी हाउ यहाँ पे अगर आप लोगों को इस चीज से ज्यादा कंसर्न नहीं भी है कि ये कैसे आया, लेकिन अगर आप लोग इसको देखते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, ये एक अच्छी बात होगी अगर आप इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम देख ही लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर ही है। अच्छा जी, देखें हमारे पास ना ये रिएक्शन ए कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। अगर मैंने इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं क्या कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं लॉग वगैरह लेके, तो हमारे पास एक जनरल टर्म आ गई है। इसके अंदर अगर आप लोग, तो के हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, कंसंट्रेशन है, और एक्स हमारे पास अमाउंट ऑफ शुगर हाइड्रो हमारे पास वो अमाउंट की जो अभी रहती है, जो भी अगर इसको लॉग मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, काफी कट रही है। हमारे पास जी मैम अभी भी नहीं आ रही जी आवाज। क्लियर नहीं है। अच्छा wait a second. यस मैम अब ठीक है। अच्छा चलिए, मैम लेफ्ट कर गई। आप रजाई में ही क्यों लग रही है आप? बिल्कुल, अब माइक ऑफ करने के लिए हाथ बाहर निकालना पड़ता है।
जुनेद भाई आपकी तबीयत ठीक आपने है माइक वैसे? बाहर दीवार पर लगाया हुआ है? सीनियर सिटीजन भाई यार, रजाई के अंदर सिग्नल नहीं आते, मोबाइल बाहर पड़ा होता है ना, तो अगर माइक ऑन ऑफ जी, करना वैसे होता इतनी तो सर्दी बता आपको रहा क्यों हूँ। लग रही है? यार यहाँ पे बहुत सर्दी, वाकई बहुत सर्दी है। रजाई है या इंसुलेटर है? रजाई इंसुलेटर ही होती है। इतनी भी नहीं होती। रजाई में ब्रेकर लगे हुए हैं आप? अच्छा, सिग्नल जब ब्रेकर? दिलशाद बोलते हैं तो इसकी सामने आ जाती है वो ऐसे लगता है डॉक्टर मीर ही बैठे हुए हैं। टॉपिक ना चेंज करो। नहीं वैसे जुनेद अपना इलाज कराओ यार, इतनी सर्दी क्यों लगती है आपको? इलाज किस चीज का, तुम्हें नहीं सर्दी लगती? नहीं यार, ओ आपको अच्छा कुछ ज्यादा ही यार, समझ आ गई। तुम्हारा शहर छोटा है ना, वहां पे सर्दी भी कम होगी। बात करनी है तो मीटिंग लेफ्ट कर जाओ, उधर बात करो, इधर डिस्टर्बेंस नहीं करनी आपको। तो आप क्यों बात कर रहे हैं? आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट ही आपने की थी। अच्छा, ये ना तकरीबन 20 मैसेज हो गए, मैं मैम को यही कहता हूँ, मैम आपकी क्लास लेफ्ट होगी अभी फिर वही फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पर वो हमें क्यों बता रहे हो? बता रहा हूँ मतलब। दिलशाद भाई आपको नहीं बता रहा। और हाँ, हाफिज को बता रहा हूँ। नहीं, हाफिज को भी शायद नहीं बता रहे हैं। और किन अरसलान ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ मैं फिर। नहीं, आप क्या समझते हैं मुझे भी दिलशाद नहीं कैसे बता बाल उड़ रहे गए? ये सारा भाई एक्सपीरियंस बता रहा है उसका। यार, कुछ लोग ना हैंड फ्री यूज नहीं करते तो आवाज सब तक जाती है, वो घर वाले मैम भी सुन रहे मैम आ गई हैं। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, फिर अरेज हो गया। एक मिनट जा। अच्छा जी, ये आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, हो रही है। अच्छा ठीक है। क्या हो रहा है बार बार? अच्छा जी, ये हम लोग ना फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे थे। वो जब मैं लिखती हूँ वो फिर रेज हो जाता है, फिर दोबारा से लिख लेते हैं। अच्छा जी, अगर हम उसको रेट ऑफ उसको लिखेंगे तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल होता है? रेट कांस्टेंट
or you can say that change in the concentration of reactant with respect to the time। हमारे पास से ये इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, ठीक है, तो हम क्या करें कि ये जो डी टी है इसको के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी कंसंट्रेशन है उनको आपस में डिवाइड कर दें। सो यू कैन राइट हियर डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स एंड इट विल इक्वल टू के डी टी। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को फर्दर क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेट करने के लिए जो इंटीग्रेशन का साइन है दैट इज दिस वन। आफ्टर इंटीग्रेशन you take the integration and after integration what you got minus log nature a minus x minus log nature a minus x is equal to k t plus c, ठीक है। ये आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास ये इक्वेशन आई है। ये वाली इक्वेशन हमने कहाँ से लिखी है, हमारे पास एक रिएक्शन है कि रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। जब टाइम आपका जीरो है तो रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन ए है और पी उस वक्त जीरो है, लेकिन जब आपका कुछ टाइम गुजर जाता है टी इज इक्वल है टी के, यानी कुछ टाइम गुजरने के बाद जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स होती है और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है, एक्स होती है। सो एट दैट टाइम इंटरवल अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ता है तो आप क्या लिखते हो, डी एक्स ओवर डी टी एंड इट इज इक्वल टू द के ए माइनस एक्स, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट के। और जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया वहां पे हम लोगों ने कांस्टेंट पुट किया, ठीक है। इसके बाद इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया है, डी टी को के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पे जो a माइनस एक्स है उसको उसके नीचे डिवाइड कर दिया। आफ्टर रीअरेंजिंग द इक्वेशन यू जस्ट टेक द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया दैट इज द माइनस लॉग नेचर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर आप ये सपोज करके है जो हमारे पास टी है टाइम है वो जीरो है और हमारे पास जो एक्स है कंसंट्रेशन भी है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कि लॉग नेचर ए इज इक्वल है किसके, सी के। ये इक्वेशन कैसे आई है देखें, टी मेरे पास जीरो है, के जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो जीरो तो बाकी बच गया सी। ए माइनस एक्स, एक्स को भी मैंने अगर जीरो कंसिडर किया है तो ए माइनस जीरो जीरो, तो लॉग नेचर ए सिर्फ ए ही रह जाएगा, तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो सी की वैल्यू है आप इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी माइनस लॉग नेचर ए माइनस एक्स और इक्वल है के टी के, और इसके बाद जो c है आप उसकी वैल्यू को लिख दें। c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, c की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस लॉग नेचर a, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। इसको आगे हम लोगों ने फर्दर क्लैरिफाई करना है। यहाँ पे जो मेरे पास ये लॉग नेचर a है इसको आप इक्वल के उस साइड ले आए। इक्वल के उस साइड आने से क्या हो जाएगा, इट विल बिकम लॉग नेचुरल a माइनस एक्स, ठीक है, और इसके साथ डिवाइड होके आ गया क्या, लॉग नेचुरल a, लॉग नेचुरल a, ठीक है। ये मेरे पास है और इनके साथ है माइनस का साइन स्टिल है। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है उसको खत्म करने के लिए ये क्या है, ये टर्म्स आपस में क्या करेंगे, रिवर्स हो जाएंगी। तो जो लॉग नेचुरल a है वो ऊपर चला जाएगा और a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी और ये किसके इक्वल रह जाएगा, ये रह जाएगा के टी के। यहाँ से k को सेपरेट करने के लिए t जो दोबारा है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आप ये वाला एक्सप्रेशन देखें, यहाँ पे हमने हमारे पास 2.33 लॉग आया है। ये क्या है, बेसिकली ये नेचुरल लॉग की वैल्यू है। नेचुरल लॉग हमारे पास इक्वल होता है 2.303 लॉग के, तो नेचुरल लॉग की जगह हम लोगों ने उसको पुट किया है, बाकी तमाम का तमाम रिलेशन ये आ गया है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी सारी ये जो एक डेरिवेशन है
इसके साथ ऐसा हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे आई है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं? ऐसे तमाम रिएक्शन जिनमें जो रेट डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पीशीज ऑफ द रिएक्टेंट, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। और जो अगर दो कंसंट्रेशन स्पीशीज किसी दो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो तरह की स्पीशीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो दैट विल बी द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और हम जो करंटली केस स्टडी कर रहे हैं दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द शुगर, इट इज द सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। It is pseudo because here the second species is the water, and water present in a large of process, or this water concentration does not change by decreasing the time, by using the time. So what happens? The only rate depend upon the concentration of the sugar. So we are using just this one formula. In this formula we just add the value of concentration of the product and the change in the concentration of the reactant with respect to the time, and you got your रेट कांस्टेंट। बट ये इतना सिंपल नहीं है कि आप जस्ट इसको वैल्यू पुट करें। हम जो करंटली केस स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर हम यूज क्या कर रहे हैं? हम लोग पोलैरीमीटर यूज कर रहे हैं। पोलैरीमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें प्लेन पोलराइज लाइट्स की जो होती हैं, प्लेन पोलराइज लाइट की जो हमारे पास जो डायरेक्शंस है हमें वो बताता है। तो हम लोग यहाँ पे प्लेन पोलैरीमीटर को यूज करके क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे कंसंट्रेशन सुक्रोज की। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा? ये बात हम पहले क्लैरिफाई कर चुके हैं कि जो हमारे पास सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि अगर आप उसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं, सुक्रोज को 0 टाइम पे करेंगे तो क्या होगा? जो आपका एंगल कुछ और आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइट है तमाम की तमाम डाइवर्ट हो राइट साइड पे। लेकिन जैसे ही हाइड्रोलाइसिस का फिनोमिना स्टार्ट हुआ है, वो ब्रेक डाउन हुआ है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। उसकी वजह से क्या होगा कि जो लाइट है जो पहले राइट साइड पे रोटेट कर रही थी, अब वो कहाँ रोटेट करना शुरू कर रही है? लेफ्ट साइड पे। तो डेफिनेटली आपका जो एंगल है वो लेस होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। हम उस एंगल्स को आप फाइंड आउट करके कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करेंगे। कैसे? वो हम यहाँ पे देखते हैं जी। आप कंसीडर करें कि जो ए है, ठीक है, ए नॉट हमारे पास वो एंगल है दैट इज द इनिशियल एंगल ऑफ रोटेशन, और ए इंफिनिटी इज द फाइनल एंगल ऑफ रोटेशन व्हेन द कंप्लीट इन्वर्जन हैज अकर्ड। ठीक है, सो द इनिशियल अमाउंट ऑफ शुगर इज प्रोपोर्शनल टू द ए नॉट माइनस ए इंफिनिटी। कि शुगर की कितनी कंसंट्रेशन थी वो किसके इक्वल है? वो ए नॉट माइनस ए इंफिनिटी के इक्वल है। A naught क्या है? It is the angle of rotation at time 0 when initial angle, and when the hydrolysis is begun and when hydrolysis is completed, here the angle of rotation that you have noted, it is the A infinity. ठीक है, and the difference between the A naught minus A infinity is the initial concentration of the sugar. Okay, or with after interval with when we are doing a experiment, we can note the angle at different time interval. डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, फॉर एग्जांपल 5 मिनट के बाद, क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यू है ना, एकदम से तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेकर होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन ने 20 मिनट लेनी है हाइड्रोलिसिस के लिए फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे? हम एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे उसकी हाइड्रोलाइसिस को चेक करेंगे। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे कितना हाइड्रोलाइज हुआ है, 10 मिनट के बाद करेंगे, 20 मिनट के बाद करेंगे। तो अल्टरनेटिवली इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट शुगर की हाइड्रोलाइज हो चुकी है। अब हम लोगों जो हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे एंगल फाइंड आउट करेंगे उसको हम कहेंगे दैट इज द ए टी। ठीक है, और ए टी में से अगर आप फाइनल एंगल की को माइनस करोगे तो ये कौन सी अमाउंट होगी? ये शुगर की वो अमाउंट होगी दैट प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम जो कि अनहाइड्रोलाइज्ड है। ठीक है, ए नॉट माइनस ए इन्फिनिटी कौन सी वैल्यू है शुगर की? जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप कह लो कि हमने 1 मोलर सोल्यूशन लिया था, तो ए नॉट माइनस ए इन्फिनिटी शुगर की इनिशियल कंसंट्रेशन है। आफ्टर टाइम टी 5 मिनट के बाद हम लोगों ने एक एंगल फाइंड किया दैट इज द ए टी। उसमें से जब हम लोगों ने
ए नॉट को माइनस किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई, जो कंसंट्रेशन आई, वो कौन सी अमाउंट है? वो शुगर की वो अमाउंट है जो टाइम टी गुजरने के बाद स्टिल अनहाइड्रोलाइज है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 मोलर यूज की है तो 5 मिनट के गुजरने के बाद आप सपोज करें कि मेरे पास स्टिल 0.7 मोलर अभी शुगर बाकी है, तो 0.7 मोलर कैसे मुझे पता चलेगा? एट टाइम टी 5 मिनट गुजरने के बाद वी हैव फाइंड एन एंगल दैट इज इक्वल टू द ए टी, और उसके अंदर से आप जो इन्फिनिटी एंगल है ए इन्फिनिटी उसको माइनस करो तो एट पर्टिकुलर टाइम आपको शुगर की अमाउंट मिल जाएगी। इस तरह 1 बाय 1 करके हम तमाम टाइम इंटरवल हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे लेंगे और हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे इस गिवन फार्मूला में। ये जो गिवन फार्मूला है ये वही फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का फार्मूला है। इसके अंदर सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे हमने अपनी जो रिस्पेक्ट के हिसाब से लिख लिया कि दैट इज ए नॉट माइनस ए इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओवरऑल इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? ए से, जो हमने पिछली इक्वेशन में किया है। और ए टी माइनस ए इन्फिनिटी ये वो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जो स्टिल अनरिएक्टेड होती है। ठीक है, यानी कि जिसको हम क्या कह देते हैं? ए माइनस एक्स। तो उसको हमने अपने इक्वेशन के हिसाब से इधर एडजस्ट किया है। यहाँ पे आपने जो समझने वाली बात है वो ये है कि ए नॉट माइनस ए इन्फिनिटी क्या है? ए नॉट इनिशियल एंगल ऑफ रोटेशन है कि जब अभी आपने अपना सैंपल शुगर का लिया और उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, उसको पोलैरिमीटर में डाला, एंगल फाइंड आउट किया, तो वो क्या था आपके पास? डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। ठीक है, इसी तरह आपने फिर क्या किया, उसके अंदर आपने रिएक्शन कंटिन्यू किया और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसका डिफरेंट एंगल लेते रहे। आपने 5 मिनट के बाद एंगल नोट किया, 10 मिनट के बाद किया, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, डिफरेंट इंटरवल्स के बाद। तो वो तमाम एंगल ऑफ रोटेशन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए टी से। ठीक है, और जो हमारे पास इस तरह फिर हमने ओवरनाइट अपना रिएक्शन रख दिया। ओवरनाइट रखने के बाद हमारे पास जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमारे पास एंगल था वो क्या था? ए इन्फिनिटी। अब हमने इनिशियल में से फाइनल जो एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि बिफोर बिगिन द हाइड्रोलिसिस एंड आफ्टर कंप्लीटेड द हाइड्रोलिसिस के जो एंगल है उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है? इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर। और जो डिफरेंट टाइम इंटरवल के साथ इन्फिनिटी एंगल का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो पर्टिकुलर अमाउंट है रिएक्टेंट की जो आपके पास स्टिल अनरिएक्टेड है, यानी कि वो अमाउंट शुगर की जो अभी तक हाइड्रोलाइज नहीं हुई और जो क्या करेगी, जो आप लोगों को एंगल जो लाइट को रोटेट करवाएगी किस तरफ? राइट साइड पे, यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो क्या होगा? आपका एंगल बहुत लेस आता जाएगा। हाइड्रोलिसिस हो गया, तमाम की तमाम लाइट लेफ्ट साइड पे रोटेट हो रही है। उसका क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि शुगर हाइड्रोलाइज हो गई है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, और जो हमारे पास फ्रुक्टोज होता है वो बेसिकली हमारे पास लिवोरोटेटरी है और जो हमारे पास ग्लूकोज है वो हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू एंगल्स की है वो साइन रोटेशन किस तरह पता चलता है? लेफ्ट से और राइट से। अगर आपके पास प्लस का साइन है इट्स मीन के रोटेशन आपकी राइट साइड पे है, और अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो वो उसका क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये हमारा था। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ही इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। लेकिन प्रोसीजर शुरू करने से पहले इसी क्लास में एक वीडियो आप देख लें। मैम जी लिंक दे दे, हम खुद ही देख लेंगे। अच्छा, चलें, ये भी वैसे अच्छा आइडिया दे दिया। अच्छा चलें, ठीक है। इस वक्त जुनैद को सर्दी लग रही है, फिर जब धूप ठीक है, निकलेगी तो देख लेगा। मैम वीडियो प्ले करके आप समझा दे तो अच्छा नहीं होगा? हाँ जी, यस मैं मैम। इसीलिए समझाने लगी हूँ। मैं कौन सा इनकी बात मानने लगी हूँ। जी मैम, थैंक यू। सेकंड
नहीं एक्चुअली मैम वो तबीयत खराब है जुनेद की, इसको सर्दी लग रही है, तो ये तो बाद में भी देख बात लेगा, नहीं, इसको लिंक भी सेंड कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, वो आराम से देखता रहे, कोई मसला नहीं है। ये विंडो आ क्यों नहीं गई? हम्म, हाँ जी, शेयर हो रही है आपको? जी मैम हो रही है। होता है उससे हम किसी भी सॉल्यूशन की जो है वो ऑप्टिकल अच्छा, रोटेशन अगर फाइंड कर आप लोगों सकते को हैं। आवाज ना आए तो इट्स ओके, इसको बस देख लीजिएगा। इसको मैं बाद में खुद भी समझा दूंगी, लेकिन मैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर लेती हूँ ताकि समझ आ जाए। लाइट के प्लेन को कितनी एबिलिटी रखता है चेंज करने में, इसका हमारा एक्सपेरिमेंट है फ्लैरीमीटर। फ्लैरीमीटर का जो हमारे पास टास्क होता है उससे हम किसी भी सॉल्यूशन की जो है मैम वो अपना ऑप्टिकल माइक रोटेशन ऑफ कर फाइंड कर दें। सकते हैं कि वो लाइट के प्लेन को ओके, कितनी एबिलिटी रखता है चेंज करने में। यहाँ हम स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन हमें पता है, स्टैंडर्डाइज जो होती है, उससे हम डिफरेंट सॉल्यूशन की जो कि हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसके हमारे पास काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, मेडिकल फील्ड में ज़्यादा यूज होते हैं इसके। इसमें ये हमारे पास ये जो इसके प्लेरीमीटर के पार्ट्स है, इसमें सबसे पहले ये हमारे पास लाइट सोर्स है, फिर ये कलेक्टर लेंस है। कलेक्टर लेंस के आगे अंदर कलर फिल्टर लगा हुआ है जो कि क्या करता है, सिर्फ सोडियम लाइट को अंदर पास होने देता है। देन इसमें लगा हुआ है पोलराइजर। पोलराइजर के बाद हाफ वेव प्लेट लगी होती है जिससे हमारे पास व्यू बनते हैं, फुल ब्राइट, सेंटर ब्राइट और सेंटर डार्क और फुल डार्क। इस जगह पर हम ट्यूब रखते हैं। देन यहाँ पर पोलराइजेशन एनालाइजर लगा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट लेंस है। ऑब्जेक्ट लेंस के बाद ये हमारे पास यहाँ पर आई लेंस है। आई लेंस में हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये दो, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और ये डायल वर्नियर है। और ये हमारे पास जो रोटेटरी हैंड हमारे पास जिसको हमने रोटेट करना है, और ये जो है ये हमारे पास प्रोटेक्टिव प्लेट है। ये तो हमारे पास इसके हो गए सारे पार्ट्स। इसमें हमारे पास जो पहला टास्क है वो है हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन में हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, ये हमारे पास है 10% का। अब इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि हमारे पास जो व्यू आते हैं वो 4 आते हैं। एक तो आता है सेंटर ब्राइट, सेंटर ब्राइट के बाद हमारे पास आता है सेंटर डार्क, फिर फुल ब्राइट और फुल ब्राइट और एक सेंटर फुल डार्क भी आता है। हमने जो अपना रेफरेंस व्यू लेना है हमने वो फुल डार्क लेना है। इसमें हमने इनिशियली इसमें कुछ नहीं रखा और हमने इसको इस तरह सेट करना है कि हमारे पास फुल डार्क जो है वो आ जाए। जैसा कि इस पॉइंट पर हमारे पास फुल डार्क आ गया है। फुल डार्क यहाँ पर हमारे पास जो रीडिंग आ रही है उसको हमने कहना है थीटा नो। इसमें जो हमारे पास जो पहला टास्क है वो हमारे पास है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। उससे पहले हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। ये जो हमारे पास रोटेट कर रहा है स्केल, ये मेन स्केल है, इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 डिग्री की है। और जो हमारे पास स्टेटिक स्केल है वो हमारे पास वर्नियर स्केल है जिसमें वो हमारे पास डिवीजन, टोटल डिवीजन उसकी 20 है। तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 20 0.05 डिग्री। अब उसमें हमारे पास जो हमने फर्स्ट टास्क के लिए हमने यूज करनी है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन, जो हमारा टास्क है उसके लिए जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हम ले रहे हैं 10%। 10% हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं। इसमें हमने ट्यूब की लेंथ यूज करनी है जो कि हमने लेनी है इस तरह। ये देखें, ये हमारे पास है 20, जिसको हमने अगर हम डेसीमीटर में करते हैं तो वो आ जाएगी हमारे पास 2 डेसीमीटर। ये हमारे पास ट्यूब की लेंथ क्या है, 2 डेसीमीटर। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अपना रेफरेंस व्यू सेट करना है जो कि हमने लेना है सेंटर डार्क और सेंटर ब्राइट के एग्जैक्ट दरमियान में आएगा, बहुत थोड़ी देर के लिए फुल डार्क। इसको हमने सेट करना है इस तरह। इस जगह पर हमारे पास वो व्यू है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल की वैल्यू है वो भी 0 है और वर्नियर की भी ही क्या है, 0 है। तो थीटा नोट जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। अब हमने क्या करना है, 10% का सोल्यूशन रखना है। 10% का सोल्यूशन जो ट्यूब में हमने रखना है उससे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारे पास एक डिस्टिल वाटर की ट्यूब है।
डिस्टिल्ड वाटर की ट्यूब रखने से आया हमारे व्यू पर कोई फर्क पड़ता है? तो वो हमारे पास हमारे व्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हमारे पास जो डिस्टिल्ड वाटर है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो देन हम 10% सोल्यूशन को देखते हैं। अब ये जो ट्यूब हमने रखनी है ये इस तरह रखनी है कि अगर इस ट्यूब में बबल है तो ये इस तरह आए, और ये हमने इस एंगल पर इस तरह रखनी है कि ये जो बल्ब सा बना हुआ है ये ऊपर वाली साइड पर। ये हमने इस तरह रख दिया, ये यूं। अब हमने अगेन अपना रेफरेंस व्यू देखना है जो कि चेंज हो चुका होगा, जो कि हमारे पास इसमें हमारे पास एक है कि अगर आपको इमेज ब्लर नजर आ रहा है तो आपने यहाँ से रोटेट करके, जो कि नॉर्मली सोल्यूशन रखने पर ज्यादा ब्लर होता है, तो आपने इसको यहाँ से फोकस कर लेना है कि आपको क्लियर नजर आए। अब हमने दोबारा से रेफरेंस व्यू सेट करना है, वही वाला जो कि चेंज हुआ है हमारा। हाँ जी, इस जगह पर हमारे पास दोबारा हमारा वही फुल डार्क व्यू आ गया है, तो हम अपनी रीडिंग देख सकते हैं, जो कि हमारे पास मेन स्केल की जो है वो है हमारे पास 13, और दूसरी हम है 6 के राउंड अबाउट है। 13 प्लस 6.05 डिग्री, ये हमारे पास आती है 13.3 डिग्री। तो हमारे पास जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी अच्छा, ठीक है। सो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, इसमें जो पोलैरीमीटर का आपको इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये कुछ मशीन की तरह ही है। तो इसके अंदर हमारे पास ग्लास ट्यूब्स है जिनके अंदर हम अपना सैंपल फिल करते हैं और उसको अरेंज करते हैं इस तरह के, जो लाइट है सोडियम लाइट पास हो उसके अंदर से और हम ऑब्जेक्टिव लेंस से उसका व्यू देख सकें। आपने देखा है कि उसके अंदर 4 तरह के व्यू थे, एक बिल्कुल ब्राइट था, एक डार्क था, एक ब्राइट सेंटर था और एक डार्क सेंटर था। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो कंप्लीट डार्क है, ठीक है। जब आप जैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसी तरह आप पोलैरीमीटर को भी जब देखें तो आपको उसका व्यू डार्क नजर आएगा, वो आपने रेफरेंस सेट कर लेना है। उसके बाद आपने 1 बाय 1 क्या करना है, आपने अपना सैंपल रखना है। जब आप अपना सैंपल रख लेंगे सुक्रोज का सोल्यूशन, हम डिफरेंट पहले 0 टाइम पे रखेंगे, उसका देखेंगे। पहले हम वाटर रखेंगे, उसको नोट डाउन व्यू करेंगे तो वो बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है, यानी कि जैसा व्यू हमने सेट किया है। फिर इसके बाद आप 0 टाइम पे जब शुगर को रखेंगे तो व्यू चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा सा वहां पे आप उसको सेट करेंगे व्यू को और एंगल नोट डाउन कर लेंगे, वो आपके पास A0 होगा। फिर रिएक्शन कंटिन्यू होगा, हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हुई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप डिफरेंट टाइम इंटरवल पे 5 मिनट के बाद दोबारा सोल्यूशन लेंगे, पोलैरीमीटर में रख के एंगल फाइंड आउट करेंगे, व्यू सेट करेंगे और एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। वो तमाम के तमाम एंगल क्या होंगे, AT। इस तरह ऑलमोस्ट हम आधे घंटे तक, क्योंकि हम ये सपोज करते हैं कि तकरीबन हाफ एन आवर इनफ टाइम है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए, हाफ एन आवर तक हम 5-5 मिनट के इंटरवल के साथ फाइंड आउट करेंगे और फिर अपना रिएक्शन ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे आके हम उसका एक दफा दोबारा रीडिंग लेंगे और उस रीडिंग को हम कह देंगे दैट इज द A∞। ओवरनाइट छोड़ने का क्या पर्पस था, ओवरनाइट छोड़ने का पर्पस ये था कि आप उसके अंदर जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, अगर कुछ कोई थोड़ी बहुत कुछ अगर कोई गुंजाइश रहती भी है वो कंप्लीट हो जाए। वो हमारे पास आ गया A0, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है और उसके जरिए उसको वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे इस वीडियो को देखने का पर्पस यही था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ इट्स लुक लाइक, ये दिखता कैसा है पोलैरीमीटर, इसके अंदर ट्यूब कैसे ग्लास ट्यूब्स होती हैं, फिल करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस किधर होता है, फिल्टर लेंस कहाँ पे मौजूद है, इसको देखने से। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम बकायदा इसका प्रोसीजर देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे परफॉर्म करना है। ये तो सारी अभी तक हमने थ्योरी डिस्कस की है। सो अब तक हमने जो डिस्कस किया उसमें आपको हाइड्रोलिसिस का पता चला, सीडो फर्स्ट ऑर्डर का पता चला एंड हाउ वी डिटरमिन द रेट रिएक्शन ऑफ द सीडो फर्स्ट ऑर्डर। इसका प्रोसीजर क्या है कि लैब में अगर आपने परफॉर्म करना है तो आप कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके ओके, आई थिंक दिस इज enough for today. Yes, ma'am.